دیکھیں شاہین 3 ایک بہت بڑا واقعہ ہے. شاہین 3 کی نوعیت کیا ہے؟ میں تو کل میری طبیعت ذرا خراب تھی تو میں سن ہی نہیں سکا پروگرام، شامل ہونا تو دور کی بات ہے. تو وہ جو شاہین 2 تھا اس کی رینج کتنی تھی؟ 1750 کلومیٹر. جی. یہ انڈیا میں کیرالہ تک کا علاقہ کور کرتا ہے. ویسے میرا خیال ہے 2000 کلومیٹر تھی، جان بوجھ کے کم بتا رہے تھے. اس طرح کے معاملات میں بہت احتیاط برتی جاتی ہے، اخفا رکھا جاتا ہے. مثلا 100 جہاز پاکستان حاصل کرنے والا ہے، اگلے چند دنوں میں خبریں آئیں گی چائنا سے. یہ ویسے وہ جائنٹ وینچر ہی ہے، وہ F-16 کی جگہ وہ بھی انڈیا والے بھی نئے طیارے خرید رہے ہیں. کہ بہت سی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ راز ہوتی ہیں، وہ بتائی نہیں جاتی، اس کی تفصیلات کم از کم نہیں بتائی جاتی. اب یہ ہے 3500 کلومیٹر. انڈیا کا تو کوئی علاقہ نہیں ہے 3500 کلومیٹر. تو پھر انڈیا نے ایک بہت جدید فوجی اڈہ تعمیر کیا مالدیپ میں، سیکنڈ سٹرائک کی پاسبلٹی حاصل کرنے کے لیے. اب آپ کہیں گے فرسٹ سٹرائک ہی نہیں ہوئی تو سیکنڈ سٹرائک کہاں سے ہوگی؟ ایٹم بموں کی جنگ تھوڑی ہوتی ہے. جو اس طرح کے فیصلے ہیں وہ خدشات کی بنیاد پہ کیے جاتے ہیں کہ کوئی بھی جو تھریٹ پرسپشن ہے کہ یہ خطرہ ہو سکتا ہے، اس کی بنیاد پہ پلاننگ کی جاتی ہے. بھارتیوں نے نہیں کی تھی تو چینیوں نے ان کی گردن پکڑ لی نا. بالکل. بھارتیوں نے پلاننگ نہیں کی تھی کہ چین ادھر سے چڑھ آئے گا تو وہ چڑھ آیا نا. اور بنگلہ دیش کو بھی اس نے وین اوور کر لیا اور بھوٹان کو بھی وین اوور کر لیا. اور اب اس کی 8 ریاستوں کا 7 ریاست چکن نیک والی جو ہیں ان کی جب چاہے جس وقت چاہے. آپ کو پتا ہے کہ اندر بھوٹان کے چینوں نے گاؤں بسا دیا، کوئی انویسٹمنٹ کے نام پہ کیا ہوگا ظاہر ہے. اور بنگلہ دیش کی وزیر اعظم جو ہیں وہ عمران خان کو فون کرتی ہیں یا عمران خان انہیں فون کرتے ہیں، اور بھارتی سفیر کو 4 مہینے وقت نہیں دیتی ملاقات کا. چیزیں بدلتی رہتی ہیں نا، اس بات کو ملحوظ رکھنا ہوتا ہے. اچھا مالدیپ، اب یہ مالدیپ کے اس فوجی ہوائی اڈے تک آسانی سے مار کر سکتا ہے. شاہین میزائل کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں، یہ ایک 28-29 سال کے نوجوان کی کاوشوں کا نتیجہ ہے. اب تو اس کی عمر زیادہ ہوگی. جب شاہین میزائل کا تجربہ ہوا تھا تو اس نوجوان کی عمر جو 28 یا 29 سال تھی، اور وہ ایک مشہور سائنسدان کا فرزند ہے. اور اس نے 9 مہینے میں آکسفورڈ سے پی ایچ ڈی کی تھی، جو آکسفورڈ کی تاریخ میں شاید ایک ریکارڈ ہی ہوگا. یہ میں نے چیک نہیں کیا اس لیے میں شاید کہہ رہا ہوں، میرا گھر ریکارڈ ہی ہوگا. آکسفورڈ کی 400 سال کی تاریخ تو ہوگی، تو اس میں کبھی کسی نے 8-9 مہینے میں بھی پی ایچ ڈی کی ہوگی. اس کا مانیٹرنگ سسٹم بھی اس نے بنایا تھا، گائیڈنس سسٹم بھی اس نے بنایا تھا، اور اسٹیٹ آف آرٹ. یہ شاہین 3 میزائل ایک عام میزائل نہیں ہے، اس کے جو سیاسی اثرات ہیں وہ بھی گہرے ہیں. کیا گہرے ہیں؟ جنگ ہوگی جنگ نہیں ہوگی، مگر وہ تو اب کبھی جنگ نہ ہوگی نہ کوئی شاہ سوار موت. آخر شب کیا ہے؟ موت کی وادی کو روانہ. خوف کا بیلنس قائم کرنا ہوتا ہے نا. ادھر سے چین چڑھ آیا، ادھر دیکھیے ان کی بدقسمتی کہ وہ طالبان کی مدد کرتے رہے. افغان نہیں، پاکستانی طالبان کی، جو دراصل طالبان نہیں ہے، تقریب کار ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ پاکستان کی آرمی باہر ہارڈنڈ ہو گئی. درست. الٹیمیٹ انالیسز نے بھارت نے پاکستان کی بڑی مدد کی. ادھر کشمیر ہے، ادھر آپ علی گڑھ یونیورسٹی میں رو رہے ہیں مودی صاحب کہ جی ہم تو مسلمانوں کے بڑے خیر خواہ ہیں. خیر خواہی میں تو خیر آپ کا کیا کلام ہو سکتا ہے؟ کیا کلام ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل درست. کتے کا پلہ کے لفظ آپ نے استعمال کیے. اب وہ دیکھیے نا، ترقی کی شرح کم ہو گئی، ہمارے جتنی تو نہیں ہوئی مگر کم ہو گئی. اب کرونا تو مطلب وہ کہتے کرونا پاکستان کو لے ڈوبے گا. پاکستان کو تو انشاءاللہ نہیں لے ڈوبے گا. انڈیا بھارت کا. میں کل اس پہ شاید بات کروں کہ یہ جو مکانات کی نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے تو 50 لاکھ مکان بننے ممکن ہو گئے. ممکن، میں نہیں کہتا ضرور بنیں گے. یہ جو عمران خان صاحب نے وعدہ اور دعویٰ کیا تھا، جو کورین کمپنی آئی ہے، اچھا، اگر وہ سارے بڑے شہروں میں پلانٹ لگا دے تو ہر پلانٹ سے 18,000 مکان سالانہ بن سکتے ہیں. تو
तो 100 प्लांट लग जाए तो 18 लाख बन सकते हैं एक साल में। मुझे नहीं मालूम कि वो इसके लिए सरमाया फराम होगा नहीं होगा, इसको तो स्टडी करना पड़ेगा। मगर ये पॉसिबल अब हो गया है। चीजें पॉसिबल। टेक्सटाइल इंडस्ट्री उठ खड़ी हुई, कंस्ट्रक्शन कंपनी का मतलब, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का मतलब ये है कि 25-30 इंडस्ट्रीज उठ खड़ी हुई। कोई टूटियां बनाता है, कोई दरवाजे बनाता है, कोई ये पत्थर उसमें इस्तेमाल होते हैं, क्या क्या चीजें इस्तेमाल होती हैं, बाथरूम बनते हैं उसमें क्या क्या चीजें इस्तेमाल होती हैं, कालीन बिछाए जाते हैं, फर्नीचर खरीदा जाता है, ईंटें बनती हैं, सीमेंट है। तो चीजें जो है ना जी वो बदल सकती हैं अगर तवानाई हुकूमत की और अपोजिशन की सारा वक्त एक दूसरे को बर्बाद करने पर सर्फ ना। एस्टेब्लिशमेंट की अप्रोच इसमें ज्यादा हेल्दी है कि भाई चीजों को ठंडा रखा जाए, एहतसाब तो होना चाहिए। जिस माशरे में एहतसाब नहीं होता वो तो कुरान करीम कहता है कि वो जिंदा ही नहीं रह सकता। मगर इंतकाम की हवा नजर आनी चाहिए। किसास हयातुन या उलिल अलबाब, लेकिन इस तरह नहीं कि उसमें इंतकाम का शायबा भी पैदा नहीं होना चाहिए। और ये काम खान साहब का नहीं है, ये नैब का है। ब्रॉडशीट पे बात करेंगे तो फिर इस बात। और रिजवी साहब ने, खादिम रिजवी के साहबजादे साद रिजवी ने कहा कि मुकदमे वापस लिए जाए। जो मुआहिदा हुआ ये उसने कहा जो मुआहिदा हुआ उस पर अमल किया जाए। अभी तो उसे चार्ज लिया है, अभी उसको स्टेबलाइज करना है, लेकिन जाहिर है कि वो कुछ करेगा तो उसकी लीडर चमकेगी। साद नाम के कुछ खुसूसियात बता रहे थे। वो मैं जानता हूँ, वो तो बड़ा अग्रेसिव आदमी है, वो अपने बाप से कम अग्रेसिव नहीं है, यंग है, गर्म खून है, नहीं यंग है और अग्रेसिव है। और तो वो मेरे ख्याल है वैसे कुछ बातचीत हो जाएगी, कुछ तय हो जाएगा कोई मामला, इसलिए कि बहुत सारे महाज तो हुकूमत नहीं खोलना चाहिए। यहाँ पे भी पहले ही बहुत सारे खोले हुए, तो ये अब आप आ जाए ब्रॉडशीट पे। मुझे ये बताएं हारून साहब, ब्रॉडशीट की तहकीकात पे बात करती हूँ। सबसे पहले ये बताइए जो मामला उठा हुआ है जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद साहब की सरबराही से मुतालिक, एतराज क्या है, अदम एतमाद की वजह क्या है, प्रॉब्लम कहाँ पर है? नहीं, इसको शुरू से देखें ना, अगर हम एक तरतीब से देखें तो शायद ज्यादा बेहतर, शायद ये लिंक करे, शायद ज्यादा बेहतर एक्सप्लेन हो जाए। 99 में जनरल मुशर्रफ का दर्द सर क्या था, वही जो आज इमरान खान का है कि जो नाजायज पैसे बनाए गए हैं वो बरामद किए जाएं और सियासी पार्टियों को दबाया जाए और अपने इक़्तिदार को दबाम दिया जाए। वो एक फैसला किया था उन्होंने, उसकी बाबत किसी वक्त बात करूंगा। तो रात को कोई उन्होंने कहा जनरल मुशर्रफ ने कि ये काम करना, फलां आदमी को पीटीबी का एमडी लगा था। अच्छा, तो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने जनरल अजीज से कहा कि सर ये उन्होंने कहा है तो मेरे ख्याल में मुनासिब तो नहीं है, लेकिन मैं तो जसारत नहीं कर सकता। तो सवेरे वो गए जनरल मुशर्रफ के पास और उन्होंने कहा कि अगर तो हमें 10 साल हुकूमत करनी है तो हमें इस तरह के फैसले नहीं करने चाहिए, ठीक, और अगर बहुत जल्दी चले जाना है तो फिर इस पे अमल हो, तो फिर मतलब नाकस फैसले कुछ न कुछ दिन निभ जाते हैं। तो वो फैसला उन्होंने वापस ले लिया था। देखो फौज में मुशावरत हैरत अंगेज बात है कि सियासी पार्टियों से ज्यादा होती है, हालांकि होनी सियासी पार्टियों में ज्यादा चाहिए, मगर दुनिया भर में जहां कहीं तरक्की हुई है सिविल अदारों के बल पे हुई है। देखो ना फौजियों ने तो इसके नायब के मामले में कितने पहाड़ जैसी गलतियां की हैं, बाद में भी हुई गलतियां, लेकिन आगाज वहीं से हुआ। आगाज कैसे हुआ? जनरल अमजद बड़े इंटेग्रिटी के आदमी थे, लेकिन उनको कोई तजुर्बा तो नहीं। पहले चेयरमैन नैब जो बनाए गए, बड़े इंटेग्रिटी के आदमी थे। जब समझौते शुरू हुए तो उन्होंने छोड़ दिया था। जनरल खालिद को ले आए, जो समझा जाता था ज्यादा प्रैक्टिकल है, जो मसलियत से भी काम ले सकते हैं, एनर्जेटिक बहुत है। जनरल खालिद मकबूल भी बहुत काम किया उन्होंने, लेकिन ये कि जब उन्होंने मसालियत शुरू की, जो सबसे पहले चौधरी बरादरान के साथ की, फिर और लोगों के साथ की, फिर शेर पाव से की, फिर और लोगों से की, फिर तो नवाज शरीफ से ही कर ली, तो जनरल अमजद छोड़ गए। अब वो जो मुआहिदा है ना, वो पहला मुआहिदा ही नाकस था। पहली बात तो ये कंपनियां बाद में बनी, फैसला पहले हो गया। ये तो बड़ी अफरा तफरी बनी थी ब्रॉडशीट, एक और कंपनी बनी थी। अच्छा, यानी मुआहिदा तो आदमी से हुआ ना, जुबानी अंडरस्टैंडिंग, तो पहले कि ये मफाहमत अंडरस्टैंडिंग एक आदमी से हो गई, बड़ी जल्दी कंपनी बन गई। अब उसने कहा कि जी 20% मुझे मिलने चाहिए। चलिए हम कहते हैं कि ठीक है, अगर पाकिस्तान को $100 बिलियन मिलते हैं, जो
डॉक्टर शुएब सडल ने वज़ीर आज़म से कहा था कि ये बहुत ताख़ीर तलब काम है, बरसों लग जाते हैं, फिर भी ज़रूरी नहीं होता नतीजा निकले, कि नतीजा मुस्बत ही आए। लेकिन अकबर शहजाद साहब का, शहजाद अकबर साहब की तो राय मुख्तलिफ थी। ज़ाहिर है उन्हें तो एक जॉब चाहिए थी। माहिर तो एक ही है वाइट कॉलर क्राइम का, बड़ा माहिर एक्सपर्ट, और भी हैं डॉक्टर साहब नहीं, और भी हमारे साबिक आईजी बहुत अच्छे हैं। तारक खोसर साहब हैं, वो दूसरे हैं अपना शुमाली इलाकों से, क्या नाम है उनका, जिन लोगों ने ये 2001 का पुलिस ऑर्डर बनाया थे, सारे बड़े बाकमाल लोग हैं। पुलिस में बाद लोग बहुत ही अच्छे हैं। जुल्फ़िकार चीमा तो खैर उनमें नहीं थे, उस वक्त वो यंग थे निस्बतन रिलेटिवली। तो वो जो मुआहिदा है वो वाइट कॉलर क्राइम के एक्सपर्ट से मशवरा करके बनाना चाहिए था ना। सिर्फ 20% उसका नहीं जो वो ट्रेस करेंगे, तो जो नैब ट्रेस करेगी उसका भी 20%, ये लिखा हुआ है उसमें। अच्छा, नैब ट्रेस करेगी 20% उसमें से उसका भी उनको मिलेगा, और ब्रॉडशीट को अलग से मैं मिलेगा। आपको उसकी एक मिसाल देता हूँ। ये काम किस तरह से होता है ये बताइए। बहरिया टाउन जब बना है शुरू में, तो मेरे घर के सामने सिर्फ दरमियान में एक नदी थी, जब मैं वॉक करने के लिए जाता था। तो जिस आदमी ने मुआहिदा किया उसने कहा कि ज़मीन आप किसी से भी खरीदें, चाहे मेरे ज़रिए खरीदें या किसी और के ज़रिए, 20% कमीशन या इतने परसेंट जितना परसेंट था वो मैं लूँगा। तो उस वक्त उन्हें ज़रूरत थी, उन्होंने कर लिया। बाद में फिर देखा जाता है भाई इस पे अमल कितना करना कितना नहीं करना, बाद में उनके रास्ते अलग हो गए। खैर, जब ज़रूरत शदीद होती है ना इतनी कि फ्रस्ट्रेशन पैदा कर दे, तो आप इस तरह के मुआहिदे करते हैं। फिर जनरल अमजद की दयानत में तो किसी को कोई शुबा नहीं, कभी हमने उनके बारे में ये नहीं सुना कि किसी ने उन पर उंगली उठाई हो। और वाइट कॉलर क्राइम के एक्सपर्ट थोड़ी थे। ये बात मानने की क्या जरूरत थी कि जो नैब सुराग लगाएगी उसका भी 20% आगे सुने। इमरान खान साहब ने बाद में ये कहा कि हम 25% देने के लिए तैयार हैं। बात 20 से 25% पे जाके रुक गई। मगर उन्होंने ये नहीं कहा, ये नहीं, इमरान खान ने ये नहीं कहा कि नैब जो उसका सुराग लगाएगी उसका भी दे देंगे। उन्होंने कहा $100 बिलियन ले आए। अब खान साहब को इन मामलात का उतना कोई तजुर्बा तो नहीं तो है। मुशीर भी तो रखे हुए ना अनुसा। और मुशीर को उनको कोई तजुर्बा नहीं, वो भी सीख रहे हैं ना। अच्छा, फर्ज कीजिए वो 100% मुखलिस हो, तो वो वाइट कॉलर क्राइम के एक्सपर्ट थोड़ी हैं। अक्रॉस द स्वेज पहला PhD वाइट कॉलर क्राइम का डॉक्टर शुएब सडल था पूरे एशिया में, अफ्रीका में। ठीक है, मुझे जहाँ तक मैं जानता हूँ उनसे मशवरा नहीं किया गया, उनसे मशवरा किया जाना चाहिए था। अच्छा, उन्हें बलूचिस्तान के IG थे और क्योंकि परफॉर्मेंस ज़बरदस्त थी, और पुलिस ऑर्डर उन्होंने और उनके साथियों ने मिलकर ड्राफ्ट किया। हाँ जी, है जी, यही जिन लोगों का मैंने नाम लिया, बड़ी हरकत की थी।